Hello students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 12 of your class course science, that is air, water and weather. No, they are the basic thing that is in our environment. Air is all around us. Without air, we cannot live. Air provides us many gases. It consists of many gases like nitrogen, carbon dioxide and oxygen. The main gas that we inhale is oxygen, and then the gas we exhale is carbon dioxide that is present in the air. And you know what is water? The water is also very essential for our life. Without water, the life is not possible on this planet Earth. The trees will not grow. What will the animals will drink? How we will cook the food? What we will drink? How we will digest food without water? So we need water for everything. And weather क्या होता है? It is the climatic condition of a place at a particular time. It can change within seconds or within minutes. That is called weather. Here we will study about weather कि weather क्या होता है. Second we will study about sun and weather. Sun और weather क्या होता है. Third is air. We will study about air. Next is water. We will study about water. The next is the water cycle, the in which the evaporation condensation takes place. And the last one is purification of water. How can we purify water? Here, look at the picture given below. Match the pictures with weather. You can match these pictures with the weather. Hot day. In which is the picture? In which picture is the hot day? In this picture, you can see the hot day. Cold day, you can see in this picture. Rainy day in this. And the pleasant day in this picture. The term hot, cold, rainy, cold and pleasant are used to describe the different weather. Hot, cold weather भी होता है, cold weather भी होता है, rainy weather भी होता है और pleasant weather भी होता है. Weather as we know is the condition of air around us. Weather क्या होती है? Condition होती है हमारे air की जो हमारे आसपास होती है. It may be hot, cold, windy, calm. वो हॉट भी हो सकती है, कोल्ड भी हो सकती है, विंडी, काम भी हो सकती है, humid, dry और cloudy also. What brings about these changes? क्या क्या changes लाता है ये चीज? Well, it's none other than the sun. Sun से अलग कुछ नहीं होता. It is the distance of the earth from the sun that decides if a place will have summer and hot weather or wind or cold weather. एक सन होता है वो जो डिसाइड करता है कि अब कोल्ड वेदर होगा, हॉट वेदर होगा, रेनी टाइम होगा या विंटर्स होंगी या समर होगा. द सन अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ द एयर. सन क्या इफेक्ट करता है? जो एयर की मूवमेंट होती है उसको इफेक्ट करता है. दिस कैन मेक द वेदर काम, विंडी और स्टॉर्मी. क्या बना सकता है? वेदर को काम भी बना सकता है, विंडी भी बना सकता है और स्टॉर्मी भी बना सकता है. The sun also brings about changes in water. Sun क्या लाता है? Changes लाता है water में. Evaporation and condensation, thus bringing about changes in the weather. वो क्या लाता है? Evaporation और condensation से क्या होता है? Changes होता है हमारे weather में. The effect of sun on water can make the weather humid, cloudy, rainy, foggy, etc. जो इफेक्ट ऑफ सन होता है किस पे? वाटर पे. वो क्या बनाता है? वेदर को ह्यूमिड भी बनाता है, क्लाउडी भी बनाता है, रेनी भी बनाता है, फॉगी और एक्सेट्रा. Here it is a hot day, it is a cold day, and it is a rainy day. That this weathering help because happens because of only sun. Various elements of weather are related to each other. तो weather के बहुत सारे elements होते हैं एक दूसरे से related होते हैं. It is the sun that affects these elements. क्या है? हाँ, एक sun है जो एक इतने सारे elements को affect करता है. The heat of the sun affects the movement of the air. जो heat होती है sun की क्या effect करती है? Air की movement को effect करती है. It also changes the form of water and in turn causes changes in weather. वो क्या cause करती है? Form of water in turn causes the changes in weather. Changes लाती है वो weather में. Here sun and weather. We will talk about sun and weather. What are sun and weather? सन रोल्स इन वेदर चेंज. सन क्या रोल करता है? वेदर में चेंज करता है कि सन बहुत ज्यादा ब्राइट है तो इट विल द सीजन विल बी हॉट, द वेदर विल बी हॉट. इफ द सन इज नॉट विजिबल, द रेज आर नॉट कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सन, द वेदर विल बी कोल्ड. और इफ द क्लाउड्स आर covering the sun, the season will be cloudy, the weather will be cloudy.
We know that the earth has two movements. हमें पता है इसकी two movements होती है, rotation and revolution. The earth spins on its axis and movement of the earth is called rotation. जो अपने axis पर spin करता है, that is rotation. The rotation of the earth causes day and night. जो rotation होती है actually क्या cause करती है? Day और night cause करती है. Days are warmer because of the heat of the sun, while nights are cooler because the absence of the earth, of absence of the sun. Days क्या है हमारे cooler होते हैं. Days are warmer because the absence of the because the presence of the sun. Days हमारी बहुत ज्यादा गर्म होते हैं क्योंकि sun की rays आती हैं. And nights are cooler because the absence of the sun. क्योंकि nights में तो sun होता ही नहीं. The second movement of the earth is around the sun, which called revolution. Second movement क्या होती है? हमारे अर्थ के अराउंड होती है, सन के अराउंड होती है हमारी अर्थ की रोटेशन. That is called revolution. That revolves around the sun. वो क्या कॉज करता है? सीजन्स कॉज करता है. The earth has tilted axis. जो अर्थ के एक्सिस है वो थोड़ी सी tilted है. Both these factors bringing about changes in the season. जो ये change दो factor है, evolution और tiltedness, उससे क्या होता है? इफेक्ट होता है, हमारे seasons change होते हैं. The part of the earth that is tilted towards the sun has longer and hotter days. जो part of the earth होता है जो tilted होता है हमारे sun के अराउंड, तो वहाँ जब क्या होता है? longer and hotter days होता है. Summer season, while the part of the earth that is tilted away from the sun, जो part of the earth है जो tilted अब दूर है जो sun से, that has shorter and colder days. आपने देखा है ना winters में shorter days होते हैं, that is because of the tilted, that is our earth is tilted away from the sun. वो क्या कॉज रहता है? विंटर सीजन में होता है ऐसा. दस इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज इन द सीजन. जो इवोल्यूशन होता है अर्थ को क्या कॉज करता है? कॉजेज सीजन्स. द सन हीट्स अप द एयर ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन वेदर. जो सन होता है हीट करता है एयर को, क्या हो जाता है? चेंज लाता है वेदर में. एज द एयर गेट्स हीटेड इट बिकम्स लाइटर. जैसे एयर हमारी हीट होती है तो क्या हो जाती है? लाइटर हो जाती है. एंड इट राइजेस अप. और वो क्या होती है? राइज अप करती है. When air cools, it becomes heavy and comes down. जब एयर कूल होती है तो वो हेवी हो जाती है और नीचे आ जाती है. It gave rise to air current और winds को. किसमें राइज देती है? एयर करंट को और winds को राइज देती है. The air current can be gentle. जो एयर करंट होता है वो जेंटल भी हो सकता है. As in a breeze टाइप में जेंटल होता है एयर करंट. If the current is strong, we call it a gale. जब एयर करंट बोलते तो स्ट्रॉन्ग होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? गेल कहते हैं. और अ स्टॉर्म के टाइम के भी एयर करंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. इफ अ एयर इफ अ स्ट्रॉन्ग विंड इज ब्लोइंग विथ थंडर, अगर स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो कर रही है थंडर के साथ एंड लाइटनिंग, वी कॉल इट अ थंडर स्टॉर्म. उसको क्या कहते हैं? थंडर स्टॉर्म भी कहते हैं. So we see that the air currents affect the weather of a place. तो हम देखते हैं कि जो एयर करंट है क्या अफेक्ट करता है प्लेस के वेदर को. Here the sun makes the wind blow. जो सन है वो क्या ब्लो कर रहा है? विंड को ब्लो कर रहा है. नेक्स्ट इज नून इज द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द डे. जो नून है क्या है? हॉटेस्ट टाइम है कहाँ का? डे का. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एयर. एयर इज ऑल अराउंड अस. एयर हमारे चारों तरफ है. इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस. वो किसके मिक्सचर है? बहुत सारे गैसेस मिक्सड है हमारी एयर में. लाइक इट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स. क्या क्या है? डस्ट पार्टिकल्स भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, वाटर वेपर भी है, नाइट्रोजन भी है. The protective layer of air which is surrounds the earth is called the atmosphere. जो protective layer होती है हमारी एयर की जो सराउंड करती है हमारे अर्थ में, that is the atmosphere. Our earth is covered with the blanket of the atmosphere. When the wind is gentle and the pleasant, it is called breeze. जब wind gentle होती है, pleasant होती है, उसको हम क्या कहते हैं? breeze कहते हैं. However, sometimes the wind is very strong. और कभी कभी wind हमारी बहुत ज्यादा strong होती है. It is accompanied by thunder and lightning. किससे accompanied होती है? thunder भी होता है उस टाइम पे, lightning भी हो रही होती है. This is called storm. उसको क्या कहते हैं? storm कहते हैं. जब cloudy weather होता है, lightning होती है, बहुत ज्यादा तेज हवा चलती है. Storms are quite hazardous. Storm hazardous भी होते हैं. वो कई लोगों के घर टूट जाते हैं उससे, बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है प्रॉपर्टीज को.
दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज, वो बहुत ज्यादा डैमेज कॉज करता है स्टॉर्म। दे कैन अपरूट द ट्रीज, वो ट्रीज को अपरूट करता है, हट्स को, और बहुत सारे एनिमल्स के हाउसेस को भी। नाउ सी ब्रीज, व्हाट इज सी ब्रीज? द कोस्टल ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। जो कोस्टल ब्रीज चलती है सी से लैंड की तरफ, दैट इज सी ब्रीज। इट अकर्स ड्यूरिंग द डे टाइम, किस टाइम पे होती है वो? डे टाइम पे होती है। ड्यूरिंग द डे लैंड गेट्स हीटेड क्विकर देन द सी। डे के टाइम पे लैंड जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर टू द सी। द एयर अबव द लैंड बिकम्स हॉटर एंड लाइटर, जो एयर होती है लैंड के ऊपर वो हॉटर हो जाती है, लाइटर हो जाती है। द हॉट एयर राइजेस अप फ्रॉम द लैंड, जो हॉट एयर होती है राइज होती है लैंड से, एंड कूल एयर फ्रॉम द सी फ्लोज इनटू टेक इट्स प्लेस। और जो कूल एयर होती है उस टाइम पे उसकी सीज की, वो उसकी लैंड की जगह पे चली जाती है और उसकी प्लेस ले लेती है हॉट एयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नाइट ब्रीज। क्या होती है? इट हैपेंस ड्यूरिंग द नाइट टाइम। A coastal breeze blowing from land towards the sea is called land breeze। जो coastal breeze जो होती है, जो सी से, जो लैंड से सी की तरफ जाती है, that is land breeze। It occurs during the night। वो कब होती है? नाइट के टाइम पे होती है। At night the land cools down more quickly than the sea। नाइट के टाइम पे जो लैंड होता है बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाता है as compared to the sea। So the air above the sea is warmer than the air on the land। जो एयर होती है सी से ऊपर वो वार्मर होती है compared to the air on the land। The warm air rises। जो वार्म एयर होती है वो राइज होती है, and the cool air from the land rushes towards the sea to take its place। जो cool air होती है वो किसकी तरफ रश करती है? सी की तरफ उसकी प्लेस लेने के लिए। Now let's talk about water। water क्या होता है? 3/4 of our earth is covered with water। जो हमारे अर्थ का 3/4 सरफेस है किससे कवर्ड होता है? वाटर से कवर्ड होता है। वाटर इज फाउंड इन लेक्स, रिवर, सीज, ओशियन एक्सेट्रा। वाटर कहाँ पे मिलता है? हमारे लेक्स में मिलता है, सीज में मिलता है, ओशियंस में मिलता है, और बहुत सारी चीज जगहों पे मिलता है। इट इज ऑल्सो फाउंड अंडर द ग्राउंड एंड इवन इन द एयर। यस, वाटर हमारे ग्राउंड के अंदर भी होता है, दैट इज नोन एज अंडरग्राउंड वाटर, और कुछ एयर में होता है वाटर वेपर की फॉर्म में। वाटर इज फाउंड इन 3 स्टेट्स। वाटर 3 स्टेट्स में मिलता है, 3 फॉर्म्स होती है मैटर की, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में मिलता है, लिक्विड में मिलता है, और गैस में मिलता है। These 3 states are interchangeable। जो ये 3 states होते हैं इंटरचेंजेबल होता है। सॉलिड से लिक्विड में आ जाता है, लिक्विड से गैस में आ जाता है, गैस से फिर लिक्विड में आ जाता है, फिर से सॉलिड में आ जाता है। वाटर चेंजेस इज स्टेट्स ऑन कूलिंग एंड हीटिंग। वाटर अपना स्टेट को चेंज कर लेता है जब हम उसे कूल करते हैं तो वो आइस बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, जब उसे हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इवेपोरेशन। द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, जिससे वाटर एक वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, दैट इज नोन एज इवेपोरेशन। द प्रोसेस इन विच वाटर चेंजेस इट्स फिजिकल फॉर्म फ्रॉम लिक्विड इनटू गैस। लिक्विड से जब वो गैस में आ जाता है, फिजिकल फॉर्म को चेंज कर लेता है, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। Water gets evaporated due to the heat of the sun and forms clouds causing rain। जो वाटर होता है हीट अप होता है कहाँ से? सन की वजह से, और क्या फॉर्म करता है? क्लाउड कॉजिंग रेन कॉज करता है। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कॉन्स्टेंटली इन नेचर। जो इवेपोरेशन है कंटिन्यूसली नेचर में चलती रहती है, बट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज नॉट सेम एवरीवेयर। जो रेट होता है इवेपोरेशन का हर टाइम का सेम नहीं होता, हर जगह पे सेम नहीं होता। इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एट अ फास्टर रेट। इवेपोरेशन ऑफ वाटर जल्दी एक फास्टर रेट पे अभी प्लेस टेक करती है व्हेन द वेदर इज विंडी। जब वेदर विंडी होता है तब। द टेम्परेचर इज हाई। जब टेम्परेचर हाई होता है। नेक्स्ट इज द एयर इज ड्राई। जब एयर ड्राई होती है। एंड द लास्ट वन इज द एक्सपोज सरफेस इज लार्ज। जो एक्सपोज सरफेस होता है वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है। Here let's talk about condensation। Condensation क्या होता है? The process of change of water vapor into water by cooling is called condensation। जो process होता है water vapor को change करने का water में that cooling के through, that is condensation। It is the reverse of evaporation। Yes, of course। जो ये क्या है? evaporation से बिल्कुल opposite है, reverse है। इफ यू कवर बॉइलिंग वाटर विद अ प्लेट। आपने देखा होगा अगर आप कुछ कुक कर रहे हो तो आप उसे कुक कवर कर देते हो किससे? प्लेट से।
you will find tiny water droplets on the underside of the plate. तो आपको उस प्लेट के underside में आपको tiny droplets देखने को मिलती है. These drops are formed as the water vapor changes into water due to condensation. ये क्यों होती है? क्योंकि जो वाटर वेपर किस में चेंज हुआ है, वाटर में चेंज हो जाता है कंडेंसेशन की वजह से. कंडेंसेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड. कंडेंसेशन क्या लीड करती है? क्लाउड्स फॉर्म करती है. वाटर वेपर फ्रॉम द अर्थ कंडेंसेस इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स. जो वाटर वेपर अर्थ से जाता है किस में कन्वर्ट हो जाता है? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है. लार्ज ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल. जो लार्ज ड्रॉप्स होती है वाटर की वो फॉल करती है अर्थ पे किसकी फॉर्म में? रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में, रेनफॉल की फॉर्म में. Here, water vapor also condenses in some other forms and falls on the ground. Yes, water vapor कुछ other forms पे भी condense करता है हमारे अर्थ पे और fall करता है ground पे. That is dews, frost, mist. Dews की form में, frost की form में, mist की form में. In winter season, you have seen the dews on the leaves. Let us read about them. First one is dew. In the early morning, if you observe the plants and flowers, you will see small drops of water on them. आप अर्ली मॉर्निंग में ऑब्जर्व करोगे प्लांट्स को और उनकी लीव्स को तो आपको उन पे टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट्स दिखती है वाटर की. दिस हैपेंस व्हेन टेम्परेचर इज लो एंड वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन कूल ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ द ड्रॉपलेट्स. ये क्यों होता है? जब हमारा टेम्परेचर लो होता है वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है किसकी? ऑन कूल ऑब्जेक्ट पे इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स. नेक्स्ट इज फ्रॉस्ट. It is formed in very cold places where the temperature of the surface is lower than the 0 degree Celsius. ये कब होता है? वो बहुत ज़्यादा cold places को होता है जब temperature बिल्कुल 0 degree Celsius होता है. The dew turns into ice. जो dew होता है वो किस में turn हो जाता है? Ice में turn हो जाता है. It causes huge damage to crops. और वो क्या cause करता है? Huge damage cause करता है crops पे. Next is mist. Mist क्या होते हैं? Mist is formed in the early morning when water vapor condenses in the air on fine dust particles. जो fine dust particles होती है water vapor उस पर condense हो जाता है वही early morning में. It is usually formed during the morning hours in winters. आपने देखा winters में invisible हो जाती है हमारा, हम कुछ invisibility zero हो जाती है, सब जो हर चीज invisible हो जाती है because of this mist. It is usually formed during early morning. आपने देखा होगा अर्ली मॉर्निंग में होता है हमारी विंटर सीजन्स में. नाउ फॉग क्या होता है? फॉग अपीयर्स एज डेंस क्लाउड्स फॉर्म नियर द अर्थ सरफेस. वो डेंस क्लाउड्स बना देते हैं हमारे अर्थ के सरफेस के अराउंड इन विंटर सीजन्स. नाउ स्नो इज फॉर्म्ड एट हाई ऑल्टीट्यूड्स पे माउंटेनियस एरियाज में स्नोफॉल होती है. इन लाइक माउंटेन्स on the mountains temperature is near freezing point. Temperature freezing point होता है क्योंकि वो high altitudes पे होता है. The temperature is very in the minus degrees and the water vapor is in the clouds freezes. जो water vapor होता है हमारे cloud में वो freeze हो जाता है. And into crystal of ice. क्या form करता है? वो crystals form कर देता है ice की which falls as snow. कैसे fall करता है? वो snow की form में fall होती है. आपने देखा snowfall की होती है वो क्योंकि हमारा जो वाटर वेपर है वो बिल्कुल एकदम आइस की फॉर्म में आ गया है. नाउ प्रेसिपिटेशन. व्हेन द क्लाउड्स हैव अ गुड अमाउंट ऑफ कंडेंस्ड वाटर. जब क्लाउड्स में गुड अमाउंट ऑफ कंडेंस्ड वाटर होता है एंड द साइज ऑफ द ड्रॉपलेट्स इज टू लार्ज. जो साइज होता है ड्रॉपलेट्स का वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है टू सस्टेन इन द एयर. दे फॉल ऑन द ग्राउंड. द प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. तो ग्राउंड पे गिरता है तो क्या कॉज करता है? प्रेसिपिटेशन होती है. Precipitation occurs in the form of rain, hail and sleet. Hail से क्या आपने ओले precipitation इनकी फॉर्म में होते हैं, sleet की फॉर्म में, rain की फॉर्म में या फिर hail की फॉर्म में. Next is the water cycle in which evaporation, condensation, precipitation takes place. The process of evaporation, condensation and precipitation takes place continuously in nature. ये process continuously चलता रहता है. evaporation होता है, then condensation होता है, then precipitation होता है. हमारे nature में continuous movements होते हैं. The groundwater gets evaporated from lakes, ponds, river. जो ground water होता है वो evaporate हो जाता है lakes से, ponds से और rivers से, oceans and other water bodies से भी. It condenses, falls in the form of rainfall. वो condense हो जाता है, fall होता है किसकी form में? Rainfall की form में, snow etc.
in the water bodies में fall होता है. This entire process is called water cycle. पहले water vapor ऊपर जाता है, clouds form करता है, condense होता है, then precipitation के through वो नीचे से आप जब हमारे clouds heavy हो जाते हैं, then they burst and they fall as the rain, fall in the form of rain or snow. Now how water gets impure? Water हमारा impure कैसे हो जाता है? As rainwater has no foreign substance dissolved in it. हमारे रेन वाटर में कोई बाहर का सब्सटेंस डिजोल्व नहीं होता. सो इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. तो क्या होता है? प्योरेस्ट फॉर्म होता है वाटर का. एज इट फ्लोज अलोंग द ग्राउंड थ्रू द हिल्स इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स. वो फ्लो करता है ग्राउंड पे इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स, मड, स्टोन्स एक्सेट्रा. गेट मिक्सड इन इट. जो फ्लोज होता है हमारी चीजें ग्राउंड पे होती है थ्रू हिल्स इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स की फॉर्म में, मड की फॉर्म में, स्टोन्स की फॉर्म में. गेट मिक्सड इन इट. वो मिक्सड हो जाता है उससे. जर्म्स एंड बैक्टीरिया आल्सो मिक्स विद इट. जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो भी मिक्स हो जाते हैं. पॉल्यूटेड एंड मेक इट इम्प्योर फॉर ह्यूमन कंजप्शन. वो क्या कहते हैं? इम्प्योर बना देते हैं जर्म्स, ये पॉल्यूशन उसको ह्यूमन कंजप्शन के लिए. सो हियर इज अ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर. जब हमारा वाटर इम्प्योर होगा तो हम उसे प्योरीफाई भी तो करेंगे. सो वी विल प्योरीफाई दिस वाटर विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन. इम्प्योर वाटर कैन कॉज मेनी डिजीजेस. जो इम्प्योर वाटर होता है बहुत सारी डिजीजेस कॉज करता है. सो वी शुड ड्रिंक ओनली प्योर वाटर. इसलिए हमें हमेशा प्योर वाटर को ड्रिंक करना चाहिए. द फॉलोइंग आर सम वेज टू मेक वाटर प्योर. अब कुछ वेज है जिससे हम वाटर को प्योर कर सकते. फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग वाटर. फिल्ट्रेशन क्या है? एक सिंपल प्रोसेस है जिससे हम वाटर को प्योरीफाई कर देते हैं. In this process water is passed through a filter paper. इस प्रोसेस में वाटर किस में पास होता है? फिल्टर पेपर जो आपके इसमें लगा होता है इससे पास होता है. The impurities are left behind the filter paper. वाटर जो फिल्टर पेपर में impurities रह जाती है and the clean water is collected below. जो clean water है आपका collected हो जाता है नीचे. The process by which water is cleaned by passing through filter paper is called filtration. जो प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन, जब फिल्टर पेपर के थ्रू वाटर पास होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं वी कॉल इट एज फिल्ट्रेशन. सेकंड इज क्लोरीनेशन. वी पुट क्लोरीन टैबलेट्स इन द वाटर. हम क्लोरीन टैबलेट्स डाल देते हैं वाटर में जिससे हमारा वाटर इम्प्योर हो जाता है. इन द मेथड क्लोरीन इज एडेड टू वाटर टू किल द जर्म्स. जर्म्स को किल करने के लिए क्लोरीन डाल देते हैं. सो क्लोरीन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन टू वाटर. क्लोरीनेशन क्या है? क्लोरीनेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन टू वाटर. क्लोरीन टैबलेट्स किल द जर्म्स. क्लोरीन टैबलेट्स क्या करती है? जर्म्स को किल कर देती है. प्योरीफाइज वाटर और वाटर को प्योरीफाई कर देती हैं. नाउ बॉइलिंग. बॉइलिंग वाटर इज द इजीएस्ट वे टू मेक इट प्योर. बॉइलिंग वाटर क्या एक इजीएस्ट वे है वाटर को प्योर करने के लिए. बॉइल द वाटर एट लीस्ट फॉर 10 to 15 minutes टू किल जर्म्स इन इट. हमें वाटर को बॉईल करने देना चाहिए 10 से 15 मिनट्स के लिए जर्म्स को किल करने के लिए. बॉइल्ड वाटर शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन कवर्ड यूटेंसिल्स. बॉइल्ड वाटर को हमें स्टोर कर देना चाहिए क्लीन और कवर्ड यूटेंसिल्स में. नाउ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन क्या होता है? इन दिस प्रोसेस वाटर इज केप्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम. हम इस प्रोसेस में वाटर को अनडिस्टर्ब रखते हैं. यू कैन अप्लाई दिस ऑन इन योर एक्टिविटीज ऑल्सो. इफ यू हैव टू टेक one muddy water and you have to stir it in a glass of water and stir करने के बाद आप उसको एक थोड़े टाइम के लिए will put undisturbed. उसको आप 1 hour के लिए 2 hours के लिए undisturbed रख दोगे. That sand particles will lay down in the bottom of the glass और जो आपका ऊपर का वाटर वो प्योर हो जाता है. देन यू पोर दैट वाटर इन द अदर ग्लास. अगर आप उसे दूसरे कंटेनर में डाल लोगे विदाउट डिस्टर्बिंग दैट सैंड पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड डिकेंटेशन. जो आपने इम्प्योर वाटर को प्योर करा दिए, जब सैंड पार्टिकल्स नीचे बैठ गए, दैट इज सेडिमेंटेशन. एंड पुटिंग दैट वाटर इन अनदर कंटेनर, दैट इज कॉल्ड डिकेंटेशन. The impurities settle down at the bottom of the container. जो impurities हो settle down हो गई bottom में container के, this is called sedimentation. जब impurities settle down हो गई तो sedimentation process हो गया. Pure water can be separated slowly by pouring the clean water into another vessel. उसे हम another vessel में डाल देंगे उस clean water को.
without disturbing the sand particles. This is called decantation. उसको क्या कहते हैं? हम decantation कहते हैं. Now move to the next page. Here's a recapitulation of this whole lesson. First point, weather is a condition of a particular place at a particular time in terms of temperature. weather क्या एक condition है particular place की, particular time की, एक terms पे time in terms of temperature, wind, air pressure and moisture. Second is temperature, wind, air pressure, moisture and clouds are the elements of weather. Weather के elements क्या क्या है? Temperature, wind, air pressure, moisture, clouds. These all are the elements of weather. Third, water exists in three states: solid, liquid and gas. Water three states में exist करे, that is solid, liquid and gas. Next, water cycle is a natural endless process of circulation of water. जो वाटर साइकिल क्या है? एक एंडलेस प्रोसेस है किसका? सर्कुलेशन ऑफ वाटर का. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द अर्थ टू द एटमॉस्फेयर एंड बैक अगेन. अर्थ से स्टार्ट होकर एटमॉस्फेयर में और फिर से वो वापस से अर्थ पे आ जाता है. Then evaporation, condensation and precipitation are the process involved in the water cycle. Three processes involved होते हैं water cycle and that is evaporation, then condensation and the last one is precipitation. And the last one, boiling, sedimentation and decantation, chlorination, filtration are the ways of purifying water. क्या क्या ways है purify करने की water को? Boiling, filtration, chlorination, condensation and filtration. These are the process of purifying water. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.